جو بات میں نے کی ہے وہ اچھی کر رہے ہیں یا بری، یہ بتاؤ مجھے. یہ کون سی بات ہے ابھی آپ کو یاد بھی نہیں ہے تو یار؟ بات یہ ہے کہ ابھی میں نے ملحد ویڈیو کے دیکھی ہے ساتھ میرے بھائی. بھائی میرے بھائی تم ابھی لوگوں میں کے ایک اور ویڈیو دیکھی ہے. میں اور ایک چپ منٹ. کر رہے، ٹھہر جا، نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا میں، تمہاری بھی سن لی ہے. ملحدوں کے ساتھ یہ والی چیزیں تو بحث کرنی بنتا ہی نہیں ہے. تم مجھے یہ ایک بات تو بتاؤ ذرا آپ یار، بولو کہ مجھے جواب تم نہیں آ لوگ رہا. جب کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہو، تم لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، تو ان موضوعات کو کیوں چھیڑتے ہو؟ مجھے یہ تو بتاؤ ذرا. اچھا استاد محترم، ان سے نا یہ بھی سوال پوچھنا ہے کہ یہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، مذہب تو لگاتا ہے پابندی، اور یہ آزادی چاہتے ہیں، ہاں ساتھی، مذہب تو یہ تو پابند ابھی بھی کرتا ہے. یہ ابھی پوچھیں تو گے کہ یہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی زنا کاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ اپنی ماں جی کے ساتھ بھی انہوں نے کبھی وطی کی ہے کہ نہیں کی، یہ ساری پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو یہ مذہب علم ہے آپ بتاتا کا، ہے. یہ علم ہے آپ کا. یہ وہ آپ کوئی کو علم استاد کہہ دیا رہے ہیں، آپ کا پترا، علم. جو چیز ہے وہ بتانی تو نہیں ہے، تم سے پوچھنی نہیں ہے. یہ آپ کا علم ہے. گالی دے رہے ہو کیا آپ، علم؟ یہ آپ کا علم کون سی گالی؟ ہے. یہ آپ استاد ہو. بھائی مطلب جب تم کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ کہ کبھی تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بتاؤ. توبہ نعوذ باللہ، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کیا، اور نہیں کیا نا، نہیں کیا نا. نہیں. ہاں تو کیوں نہیں کیا جب یہ پابندی تو مذہب بتاتا ہے؟ یہ دنیا کے جو مذاہب ہیں، یہ پابندیاں تو مذاہب نے لگائی ہوئی ہیں. جب تم لوگوں کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے تو پھر تم نے کیوں نہیں کیا؟ دیگر ملحدین تو کرتے ہیں، وہ تو منہ کالے کرتے ہیں، اپنی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. ہاں جی، بلڈ ریلیشن، سیکس وہ قائم کرتے ہیں، تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ شہزادے اور بہت اگلی اچھی ہے بات آپ نے یہ ہے، بات. اور اگلی بات یہ تو نے جو تصویر لگائی ہوئی ہے اور یہ جو نام لکھا ہوا ہے، سب کچھ فیک. تصویر بھی لگائی فیک، نام لکھا فیک. ابھی میں تجھے تیرے نام کا ہی مطلب پوچھ لوں نا تو وہ بھی تمہیں نہیں آنا. یہ جو لکھا ہوا ہے تم نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مونچھوں والوں کا باپ. ہیں؟ مونچھوں والوں کا باپ. مونچھ والا. یہ شنف کا مطلب مونچھ والا ہوتا ہے؟ جی جی، شنف کا مطلب مونچھ والا ہے. یہ کون سی لغت میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی زبان کا یہ لفظ ہے؟ یہ عربی کا. میں بھی پتر عربی جانتا ہوں، میں عربی کا ٹیچر ہوں. عربی کے اندر مونچھ والے کو شنف تو نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں پھر؟ یہ تو تم نے بتانا ہے نا. تو میں نے بتا دیا نا، شنف. بھائی مونچھ والے کو شنف. اوئے اس کا مطلب ہوتا ہے گانڈو. مطلب یہ کہ تم گانڈوؤں کے باپ ہو. شنف کا مطلب ہے مونچھ والا. اور نہیں، گانڈو ہوئے پیٹھ مروان والے کو کہتے ہیں. تو تم پیٹھ، یعنی سب سے زیادہ پیٹھ تم مرواتے ہو، تو اس وجہ سے تم نے یہ نام رکھا ہے. ابھی میں کچھ کہہ دوں بتاؤ. میں گا تو شنف پھر کا کہیں معنی گے کیا آپ ہے، وہ نیچے آ کنڈ بھی جاؤ. آتا ہے پھر آپ جی. نیچے آ جاؤ. فارسی جو میں سوال شنف میں کا نے کیا مطلب اس ہے کا کنڈ. جواب دو. آپ لوگ مشرک ہو یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ. او یار عربی میرا بچے، میں تم سے بہت اچھی جانتا ہوں. شنف کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ مروانے والا. تو تم نے آپ کو لکھا نہیں کہ پتا، مطلب میں پھر پیٹھ جو آپ مروانے سے پڑھ رہے ہیں نا، میں اس کے پیٹھ مروانے جو پڑھا والوں رہے کا ہو بھی نا، پیو اس کو ہوں. بھی مطلب خراب یہ کر رہے سب ہو سے سر. بڑا گانڈو. مطلب آپ کو یعنی پھر سب نہیں سے آ بڑا رہا پھر. گانڈو. عربی پھر آپ کو آتی ہی نہیں ہے، ہوں؟ پھر عربی بنے ہوئے. اچھا، آپ کے پاس میں آتی نے ہو مجھے سکتا نہیں. ہے آپ میرے علم میں اضافہ کر دو، مجھے کچھ سمجھا سکو کہ شرک کے بارے میں. اچھا آپ لوگ گانڈو تو تمہیں یہ عربی کہہ رہے آتی ہو، ہے؟ پھر کیا او یار سیکھیں گے؟ ٹھہر جا، تھوڑا سا ابھی تو لے لے، پہلے تمہارے نام کے اوپر تو تھوڑی سی بات کر لیں، پھر یہ تم نے جو تصویر لگائی ہے اس کے اوپر کر رہیں گے وہ بعد میں. تو اچھا یہ تم کہتے ہو تمہیں عربی آتی ہے، عربی آتی ہے تمہیں؟ میں نے کب بولا ہے کہ عربی آتی ہے؟ آپ نے سوال پوچھا اس کا، میں نے کہا اس کا مجھے پتہ بھائی ہے. نام تم نے وہ رکھا ہے، میں نے تو نہیں رکھا. تو مجھے پتہ ہے اس کا نام، اس کا تو مجھے پتہ ہاں ہے. ٹھیک ہے، مطلب تمہیں عربی آتی ہے تو اسی وجہ سے تم نے یہ نام رکھا نا ابو شنف، گانڈوؤں کا مجھے عربی پیو. نہیں آتی، بس یہ سمجھ لو کہ میں بس سمتا بھی ہوں اور نہیں بھی. ہوتا یہ کسی ملحد نے تمہیں بتایا ہوگا کہ یہ نام رکھ لے. بالکل بالکل. ہاں وہی دیکھا، دیکھ مان گیا نا، دیکھا مان لیا ہے نا.
میں جانتا ابھی ہوں اس بندے میں کو، یہ ایسے ہی بیوقوف بنا رہا تھا، نیچے بیٹھ کے میں سن رہا تھا، میرا پتر بچے، میں تو تم لوگوں کا اصل بات کا یہ ہے پیو میں ہوں. وہ پاپا ہاں پاپا ہاں جی، پاپا چلو میں ہوں، پاپا مفتی مبشر شاہ پاپا، یہ کہو. تتر ہو گیا نا. ماشاء اللہ ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی، مان گیا نا. یہ ملحد نے مجھے بتایا تھا تو رکھ لیا میں نے نام. ابو شنف دا پتر مطلب ہی یہ ہے گانڈووں کا پیو. جا کے دیکھ لو لغت کے اندر، جاؤ سرچ کرو. یہ کرتوتیں ہیں ملحدین کی ہیں، تصویر کسی اور کی، نام کسی اور کا، آواز کوئی اور، بندہ کوئی اور، مذہب کوئی اور. تو کبھی یہ وہابی بن کے آتے ہیں، کبھی شیعہ بن کے آتے ہیں، کبھی ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. لکھ دی لعنت ہے. ساری رات اپنی ماں کے ساتھ مزے لیتے رہتے ہیں، صبح اٹھ کے آ کے براڈوں میں آ جاتے ہیں. باندر جے نہ ہوتے. ان کو باندر کہیں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق یار کدھا شور ہے یار. وہ کھاپی پہ گئی ہے، کی ہو گیا ہے. ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق ان کے باپ دادے جو تھے وہ باندر تھے، باندر سے انسان بنے. تو ان کو اگر بندر کہو گے، سور بھی کہہ دو، کوئی ٹینشن نہیں. ان لوگوں کے نزدیک تو سب جائز ہے بھائی، کلہم جائزن، ہر چیز جائز. ہاں چلو یار کرو بات، میں سن رہا ہوں. جی ماشاء اللہ مفتی صاحب، بس یہ آتے جاتے رہتے ہیں. کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہمیں بھی ہوتا ہے کہ چلو شکار کوئی آیا ہے تو ہم بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ چلتے پھرتے ادھر ایسے ہی ہیں لوگ. ایسے ہی ہے مرزا انجینئر کے فالوور بھی، اور بھی کچھ بڑے نرمی سے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی میں مسلمان. 1 گھنٹہ لگا کے اسے بتانا پڑتا یار ہے یہ کہ اصل میں بھائی دیکھو عثمان، بندے کی جامع تلاشی لیا کریں، جامع تلاشی. یہاں ایتھیسٹ، ہندوز، سکھ، قادیانیز، روافظ، غیر مسلم کی بہت بڑی اکثریت ہے جو فیک آئی ڈیز بنا کے آتی ہیں. ان کی جامع تلاشی پہلے لے. دال میں کچھ کالا ہوتا ہے، اصل کچھ اور ہے. وہ بندہ نقاب اوڑھ کے آیا ہوتا ہے. تو اس سے اتنی جلدی جانسے میں آنا نہیں ہے. ہمیں حکم ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے خطوات سے بچنا، اس کے خطوات کے اوپر نہیں چلنا. تو اس کے نقشے قدم پہ نہیں چلیں گے. یہ جدھر ہمیں چلانا چاہتا ہے ہم ادھر چل نہیں پڑیں گے آنکھیں بند کر کے. ہم اس کی تلاشی پہلے لیں گے. اصل میں ہے کیا؟ تو جس مشن پہ آیا نا، تو پہلے وہ مشن بتا کہ تیرا مشن کون سا ہے. وہ جو وہابی کیا کرتے ہیں، سنی کیا کرتے ہیں، شیعہ کیا کرتے ہیں، وہ تو چلو بعد کی بات ہے، وہ بعد میں تیرے ساتھ نپٹیں گے. تو بتا تو کون ہے. ہاں جی، وہ شیخ عبد القادر کیا کرتے تھے، یہ وہ فلاں کیا کرتا تھا، وہ تو چل بعد کی بات ہے نا، وہ بعد میں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. وہ مسلمانوں کے ساتھ ہم طے کریں گے معاملات. تو بتا تو کون ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جن کی آئی ڈی پر میں بیٹھا ہوں، کیا نام ہے؟ نام محمد صرف لکھا نظر آ رہا ہے مجھے. کون ہے یہ؟ محمد حسن کی آئی ڈی بھائی. اچھا ایسا ہے حسن بھائی کہ حسن آپ پہلے لکھیں، حسن محمد کر لیں، تاکہ جو نام ہے وہ کم از کم پہلے نظر آئے تو بندہ پکارنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو یہ بات ہے. جی جی ٹھیک ہوگا سادہ محترم. حسن محمد ہو جائے گا نا تو وہ چلو اچھا ہو جاتا ہے. چلے ٹھیک ہے، بات کریں آپ حضرات، براڈ آگے بڑھائیں. یہ میاں صاحب بھی نیچے آئے ہیں، اور بھی کوئی کالر ہے تو اس کو اٹھائیں، کرتے ہیں بات. اور آجز کی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے. کل بھی میں نے عرض کی تھی، کل بھی روزانہ کی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی کے اوپر. تو آپ حضرات کا کوئی کومنٹ نہیں مجھے نظر آتا، تو یہ میرا شکوہ ہے بھائی سارے دوستوں سے. تو کم از کم ہماری جو ٹیم ہے ان کا کومنٹ تو آنا چاہیے.
کمنٹ لازمی بھائی آپ نے پاس کرنا اور اس کو شیئر کرنا ہے، یہ 2 کام تو لازمی کرنے ہیں. تو آپ مہربانی کیا کریں. آپ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ پیغام آگے پہنچانے کے لیے آسانی فراہم کرتی ہیں یہ چیزیں. تو پیغام تو ہم نے لانچ کر دیا، وہ پیغام جب آگے ہی نہیں جائے گا اور دشمن جو ہے وہ رپورٹیں مارتا ہے، تو جب آپ لوگ یہ کام کریں گے تو وہ رپورٹیں بھی پھر اثر انداز نہیں ہوں گی. تو آپ کو جو کہا جاتا ہے وہ کم از کم اس کو فالو کیا کریں اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلا کریں. جی جزاک اللہ. چلیں جی کریں بات، میں مائک میوٹ کر دوں. جی خورم بھائی یہ میاں عثمان صاحب ہیں، ان سے کیجیے گا بات. جی السلام علیکم میاں صاحب. میاں صاحب اتنے ہی ہو؟ وہ کتنے ٹر گئے ہو جناب، آؤ نا. اور تو تھلے بہ کے ٹیپ ٹیپ کرو ابو شنف. افسوس ہے اب سب پہ، تو افسوس کر، تو جمن والے تو افسوس کر، اپنے دے اتنے ساڑے دن افسوس کر. جہاں ٹکردا جن چلے سارے پلے سانو ہی آ کے ٹکرتے نے. ہاں جی ہوں کی لکھ رہا تھلے. اچھا عثمان بھائی پہلے اس غور کیتا ہے، پہلے آندا میں کی نام ہے کی کیا سو میں بھابی ہوں، پھر بعد جانا میں بریلوی ہوں. میاں صاحب بزی نے لادا جی کتنے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال وعلیکم ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب بھائی کیسے ہیں؟ استاد محترم آپ کے کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی وعلیکم السلام میاں صاحب، اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، احسان ہے. میں نے مائک میوٹ کیا ہے، تھوڑی سی نا چائے وغیرہ پی رہا ہوں، جی جی تو ابھی تھوڑا سا سفر کر کے آئے ہیں. تو آپ حضرات کریں بات، میں خاموشی سے سن رہا ہوں. تو میاں صاحب کا اگر ارادہ نہیں ہے بات کرنے کا تو ان کو نیچے اتار دیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو جب ان کا ارادہ ہوگا تو وہ پھر میسج کر دیجئے گا کہ میری کال اٹھائیں، تو ان کو پھر کال پہ اٹھا لیجئے گا. یہ طریقہ ٹھیک رہتا ہے. تو ایسے تو نہیں ہے نا نشستیں جو ہے نا پکڑ کے رکھنی ہے، کرسی چھڑنی نہیں، کرسی نہ وہی نہ، تو یہ والا کام ادھر نہیں. تو کرسی کم از کم وہی بیٹھے کہ جو بالکل چاکو چوبند ہے، جو سونے والے ہیں، جو ویلے ہیں، جو بالکل کوئی، تو وہ پھر جائیں بھائی، نہ ایسے نہیں. یہاں پر جو بیٹھیں گے بالکل ہوشیار چاکو چوبند، جب ان کو کہا جائے مائک اوپن کرو فوری طور پہ بولیں، جواب دیں. تو جنہوں نے سونا ہو، آرام کرنا ہو، یا ویسے ہی مطلب یہ کہ چسکے لینے ہوں، تو وہ نیچے بیٹھ کے، یہ طریقہ کار ہے. جی کریں بات. جی بالکل، جیسا کہ پہلے استاد محترم فرما رہے تھے کہ یہاں پہ بندہ آتا کسی اور نام سے ہے، اس کے پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے. ابھی عثمان بھائی کل کی بات ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آیا تو مرزا انجینئر جیلمی کا اسٹوڈنٹ بن کے تھا، لیکن وہ ساتھ میں مرزا غلام قادیانی کو بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھی قرآن و حدیث کے متعلق بات کرتا ہے. بڑا وہ تو مجھے لگتا تھا کہ وہ تو نشے کی حالت میں تھا نا، کہ اس کو تو بات کی سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، وہ آگے سے جواب کیا دے رہا ہے. وہ تو یا تو وہ ذہنی طور پہ مینٹل تھا یا نشے کی حالت میں تھا. جب قبلہ مفتی زاہد مدنی صاحب بھی تشریف لائے تھے اس وقت رات کو، جب اچھا میں یہ میاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ دوست میں کچھ دیکھ رہا ہوں، اپنے خرم بھائی، بابر مہر بھائی، سفیان معین بھائی، سفیان لون صاحب،
आपने डिजाइन किया है तो ये लगा लें यार। हाँ जी, तो जी उस तलक नाल तलक रख दो मतलब कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हैं? जी ये भाई हमारा बराड़ का मौजू नहीं है, उन्वान नहीं है, आपको समझाया है मेरे भाई, आपको समझ नहीं आ रही। हम सिर्फ और सिर्फ मिर्जा कादियानी, मिर्जा जूनियर जेलमी और जितने भी इस्लाम मुखालफ ये लोग हैं ना, उनकी नकाब कुशाई और उनका ताकुब करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ। हम क्या हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, रोज़ा रखते हैं कि नहीं रखते, दाढ़ी तुसी रखी है कि नहीं रखी, हूं इस टाइम टोपी पाई जे कि पग बन्नी जे। भाई इन सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठे हम। आप पता नहीं भूल के किसी और जगह पे आ गए हैं मोहतरम। यही तो बात समझा रहा हूँ आपको, समझ ही नहीं आ रही मियाँ। आप चले, आपको ना कोई समझ ही नहीं आ रही। आप ये जो तस्वीरें लगी हैं दो, इनको जानते हैं ये कौन है? इनके अकायद और नजरियात के बारे में आपको पता है, वाकफियत है? बताइए। ये बाप बेटा जो है, नाल दा जेड़ा जिदे दे बाप लिखा है ये तो दज्जाल है ना, ये बेगैरत है। कौन नाल दा? सज्जे नाल दा के खब्बे नाल दा? सज्जे नाल दा नहीं, जिंदे उत्ते बाप लिखा है तुसां, मिर्जा उत्ते जेड़ा है दूसरा चिट्टी पग वाला, ये तो दज्जाल है ना। अच्छा, चिट्टी टोपी वाला ए की ये दज्जाल है ना? अच्छा, ते ओ जेड़ा काली टोपी वाला? काली टोपी वाला मेरा उस्ताद है, टीचर है। ओ तेरी खैर बल्ले मलंगी। ले उस्मान, ओए मर जा। उस्मान किथे गया? वो मौजूद नहीं है काफी टाइम से। ओए ले खोदिया पहाड़ ते निकलिया चूहा। अल्लाह दी कसम है। ओए पढ़ ले यार। ओए उस्मान तेरा केस आया है, दसा ही आ, मर जा जल्दी आ जा। बैठा मसला नहीं है, तुसी जो गुफ्तगू करनी खोल के करो, कोई मसला नहीं। नहीं तुसा नहीं जाना तुसा। अच्छा यार अली ना मैं नहीं यार, एक बात तो सुनो, चल मैं ही कर लेता हूँ। वो उस्मान हमारा भाई यहाँ मौजूद नहीं है तो चलो मैं ही बात करता हूँ। अच्छा यार ये एक आपके बाबा जी, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ आपसे? पंजाबी च गल करो, मैं भी पंजाबी हूं, तुसी भी पंजाबी हो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। नहीं असल में ना रिकॉर्डिंग हो रही है तो सुने तो सही हर बंदे दा इज़ारे ख्याल अलग हुंदा है हर बंदे दे बारे। सुने तो सही ना, असल में पता है क्या, जब ये रिकॉर्डिंग जाती है ना यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर इंडियंस सुनते हैं, सिंधी सुनते हैं, कुछ ऐसे लोग सुनते हैं कि जिनको पंजाबी समझ ही नहीं आती, वो फिर नीचे कमेंट करते हैं कि शाह जी TRP ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 16 ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਲਮ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਰੇਲਵੀਓ अच्छा सुने तो सही ना एक मिनट। अंधी तकलीद वाले ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਅੰधी तकलीद वाले ना, तुसां कुरान तर्जुमा ना पढ़िया ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता ओ जा काम कर। ठीक हो गया, सुने तो सही ना। मुफ्ती दा मतलब की जिन्ने फतवा देना हुंदा। ओ यार बात तो सुने, अभी तो बात शुरू भी नहीं की मैंने। तुसी की किसे ते फतवा देना, तुसी मुफ्त वाले मुफ्ती हो आपदी टी। ओ यार ओ भाई चुप ते कर दे यार, अल्लाह दे। अच्छा ओ यार एक मिनट ठहर जाए जरा, एक मिनट रुके हैं। अच्छा मिर्जा गुलाम का मिर्जा जूनियर जेल में कहता है कि मर्जियों की यानी आपकी माँ को जन्नत के अंदर 4 शोहर मिलेंगे, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा टार्च लेकर रोशनी डालिए कि आपकी वालदा को भी 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जी शुरू हो जाए। आपकी वालदा को तकरीबन 10 शोहर मिलेंगे। लाख दी लानत तेरी जिंदगी ते बेगैरत इंसान, कुत्ते अदलिया बेगैरते। ओए खंजीर के बच्चे बकवास ना ना भाई ना जमील नहीं ना भाई, जमील इंसान पर गल ते सुन ला ना भाई ना। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਖਾਲਾ ਵੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ना भाई ना भाई ना, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं।
तो बात यह है कि देखे हमने कोई अपनी तरफ से तो बात की नहीं है, आप हमसे दलील तलब कर सकते हैं कि ये कहाँ पे हमारे उस्ताद जी ने ये बात की है, तो हम आपको आपके उस्ताद जी की वीडियो जो है ना वो दिखा देंगे। और नहीं यकीन तो हमारे YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर पूरी प्ले लिस्ट हमने बनाई हुई है, शॉर्ट क्लिप्स, वहां पे जाके वो सारी वीडियोस पड़ी हैं, देख लें जाके। तो मिर्जा जूनियर जेलमी साहब कहते हैं कि मरज़इयों की माँ को जन्नत के अंदर 4 शोहर मिलेंगे, तो आपको तो फख्र से कहना चाहिए हाँ जी मिलेंगे जी, तो आपको नाराज तो नहीं होना चाहिए। आप तो गालियां निकालते हो यार, ऐसे तो अच्छी बात तो नहीं है। आपके उस्ताद जी की बात की है मैंने, नहीं हसन साहब ये सही नहीं, अच्छी बात नहीं है, काल पे हैं, ये गलत बात, धांधली हसन की है साहब, आपने। आपको किसी बंदे ने गाली दी है, किसी ने आपको तू करके भी यहाँ पे इस पे हसन नहीं साहब बुलाया? काल पे, हसन साहब काल पे है, नहीं अच्छी बात, मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको वापस से, मुफ्ती वापस साहब से। ने जो आपसे बात की है वो आप जिसको फॉलोवर, जिसके आप फॉलोवर हैं, उनकी बात उन्होंने आपसे की है कि इसका जवाब दें, और आप गाली गलौच पे आ गए। यकीन करें ये आपने अपनी तरबियत बताई है और आपने अपने उस्ताद को एक्चुअली सही फॉलो किया। ये देखिए हमारे मोहतरम बैठे हुए ना उस्ताद मोहतरम, हम सब जनाब अपनी जो जुबानें हैं वो जनाब दांतों के नीचे दे के बैठे हैं, उन्होंने बात सुन रहे हैं। उस्ताद मोहतरम ने भी आपसे किसी किस्म की भी कोई ऐसा गलत अल्फाज यूज नहीं किया, उन्होंने आपसे वही बात की है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने आपसे वो बात की थी कि वो कह रहे हैं कि हमारी माओं को 4 शोहर मिलेंगे। हमने आपसे सवाल किया कि इसके बारे में जवाब दें सर, क्या ये वाकई 4 शोहर मिलेंगे? हसन साहब मेहरबानी करें जी, कॉल पे हैं, मैंने आपको इनवाइट किया है, आप कॉल पे हैं, अच्छी बात नहीं है। जब आप उस्ताद मान रहे हैं तो उस्ताद की तो माने कम अज कम। ये तो फिर वही कादियानियों वाली बात हुई, कादियानी भी कहते हैं जी मिर्जा जी हम आपको तो मानते हैं लेकिन आपकी एक नहीं मानते, तो आप भी वही कादियानियों वाले काम कर रहे हैं। उस्ताद जी हम आपको उस्ताद तो मानते हैं लेकिन आपकी एक नहीं मानते। हाँ जी भाई, वो जब कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ को जन्नत में 4 शोहर मिलेंगे तो तुम्हें भी मानना चाहिए, फखर से कहना चाहिए हाँ जी बल्ले भाई बल्ले मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसा ना जी, वालेकुम सलाम, आगे जी आगे, हाँ जी रोशनी डालिए जी। दसो हुण दसो, थोड़ा सवाल किया, थोड़ा सवाल ये है कि आपके तुसी डायरेक्ट मेरे ते रिएक्ट कीता, मतलब डायरेक्ट तुसी जेड़ा है गल कीती है। नहीं, डायरेक्ट आपके उस्ताद जी ने डायरेक्ट बात आपसे की है ना, वो कह रहे हैं आपके उस्ताद जी कह रहे हैं मरज़इयों की माँ को जन्नत में 4 शोहर मिलेंगे, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट खिताब किया जी। आपकी वालदा को 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जन्नत में? अल्लाह, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं आपको और यार आपके उस्ताद जी कहते हैं, उन्होंने तो कुरान की आयत पढ़ के बताया था कि जिसका तर्जुमा ये है कि जन्नत में जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। वो तो हदीस भी गालबन मुस्लिम शरीफ की एक हदीस भी उन्होंने सुनाई थी साथ। तो आप क्या कुरान हदीस को नहीं मानते, अपने उस्ताद को नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? उस्ताद की बात तो भाई वो जब कह रहा है तो फिर माने ना। तो भाई क्यों माने? तो उसने तो कुरान हदीस से साबित किया है, उसने कुरान हदीस से साबित किया था कि मरज़इयों की माँ को जन्नत में 4 शोहर मिलेंगे। तो आप बताइए कि आप क्या फरमाते हैं जी? मैं मरज़ई नहीं हूँ ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? भाई मरज़ई से मतलब होता है मिर्जे वाला, मिर्जे को मानने वाला, तो आप मिर्जे को मानने वाले नहीं है? मैं उसको मानने वाला नहीं हूँ। किसको मानने वाला नहीं है? मिर्जा जूनियर जेल में कौन मानने? अभी आपने कहा मेरे उस्ताद जी ने। ये आपका इज़हारे ख्याल है ना, उसके बारे में आप उसको मरज़ई बोलते हैं ना, तो मैं क्यों बोलूं उसको? और चलो यार मरज़ई को छोड़ो, बीच में अब मरज़ई का मौजू आपने शुरू कर दिया है। वो जन्नत में 4 शोहर आपकी वालदा को मिलेंगे कि नहीं, छोड़ें, मुझे तो इस बात का पता नहीं है। आप मुझे इसके बारे में कोई है बात तो बता दें। चले मैं बताता हूँ, आप ठंडे पहले कूल हो जाए, आप बिल्कुल कूल हो जाए। आप डायरेक्ट बात करते हैं, पर्सनल होने की बात करते हैं। हसन साहब कूल हो जाए आप। ये मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। आपने बोला उर्दू में बात करो, हमने वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे डालनी है, ठीक है। मैं आपसे उर्दू में बात करता हूँ क्योंकि आपकी जो TRP है ना वो आपको थोड़ी ज्यादा मिल जाए, कोई मसला नहीं है, लोगों को थोड़ा हो जाए, ठीक है। दूसरी बात कि आप किसी आदमी के बारे में इजहार ख्याल या अपना तखय्युल जो भी रखते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है। अच्छा आप किसी को क्या बोलते हैं, मैं तो उसको वैसा नहीं बोल सकता। मैंने ये अच्छा बोला कि अच्छा, मेरा ये सुने उस्ताद है। हसन साहब, एक हसन साहब मिनट, सुने जरा। भाई मेरी बात खत्म नहीं हुई है, लिसन टू मी केयरफुली, बाद में जवाब देना आप। आपने पहले डायरेक्ट बात की है जिसकी वजह से मैंने बदतमीजी की है, ठीक है। डायरेक्ट बात नहीं करनी, मेरे साथ जो बात करनी है आप प्रूफ के साथ करें। जो आपने सवाल किया है ना मेरे साथ, वो गलत किया, इस वजह से मैंने बदतमीजी की है। ठीक है। अच्छा सुनिए जरा, अब मुझे बोलने की इजाजत है? मेरी बात तो सुन लें पूरी। आपने जो सवाल किया है वो आप दोबारा करें और उस हिसाब से करें कि बात बनती जुड़ती हो। मुझे भी सवाल की समझ आए, मुझे ये ना लगे कि ये सवाल मेरे ऊपर हिट किया गया है या मुझे डायरेक्ट किया गया। बस यही मेरी बात है, आगे आप बात करें। अच्छा करूं आप सवाल? जी जी करो। जी माइक म्यूट करें। हो गया। अच्छा ये देखें, बिल्कुल कूल कूल रहना। मिर्जा जूनियर जेल में है, ये काली टोपी वाला जो है, ये कहता है कि जन्नत के अंदर जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अगर कोई औरत उससे ना ये सवाल करता है, एक राफसी पास बैठा होता है, वो सवाल करता है कि लोग कहते हैं कि, बल्कि औरतें कहती हैं कि हमारी औरतें कहती हैं कि मर्दों को तो जन्नत के अंदर हूरें मिलेंगी, तो औरतों को क्या मिलेगा? आगे से ये कहता है कि देखो जी, जन्नत में तो जो मांगोगे, जो ख्वाहिश। यार सुने तो आप देखिए, गलत बात है, गलत बात है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी सवाल पूरा ही नहीं हुआ, चुप करके सुनो। ओ चुप कर यार, चुप करके सवाल तो सुन लें यार। ओ यार सवाल तो सुन लें यार, हद हो गई है, सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मिर्जा जूनियर जेल में कहता है कि देखो जी, मर्ज़गी की माँ अगर मांगेगी ना जन्नत के अंदर, जो ख्वाहिश करेगी तो उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। अगर वो चाहती है कि उसको 4 शौहर मिलें या ज्यादा मिलें, तो वो अल्लाह उसको दे देगा। तो मैंने तो यही सवाल किया। अच्छा आगे वो ये भी कहता है कि अल्लाह ये भी कर सकता है कि उस औरत को मर्द बना दे और उसको 4 हूरें दे दे। तो ये अब 2 सवाल हो गए हैं। तो एक सवाल तो ये है कि क्या आपकी वालदा माजिदा जो है, उनको डायरेक्ट 4 शौहर मिलेंगे, या आपकी वालदा को अल्लाह ताला हूर बना देगा, शौहर बना देगा, यानी मर्द बना देगा, तो उसको फिर आगे से 4 हूरें दे देगा। तो ये एक मासूमाना हमारा मौलवियाना सवाल है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इस बात पे। ते पा दियो फिर लानत मिर्जा जूनियर जेल में, उस्ताद जी ते लानत पा दियो एक बारी। मैं क्यों पावां किसी ते लानत, जो मेरे को उस चीज का प्रूफ ही नहीं है। मैनू सेंड करना, मैं देखांगा, मैं फिर गल करांगा ना। यार कोई वीडियो चला सकता है काशिफ? काशिफ मेरा सिस्टम ऑन नहीं है, नहीं तो मैं। जी उस्ताद मोहतरम, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जमील भाई आप चला दें अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे तो। जी मैं देखता हूँ अभी निकाल के। हाँ चलाएं यार जरा, सारे लोग सुन लें। वो खत्म नबूवत टाइम्स चैनल जो है ना, वहां पे प्ले लिस्ट रखी है शॉर्ट क्लिप्स की, उसके अंदर ये वीडियो मौजूद है। शायद वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो गांधी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरें मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरें दे दे। अल्लाह हाँ तो जी हर बस चीज के ठीक ऊपर हो कादिर गया, है। अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। भाई और बोले तो और चलाऊं? जी अल्लाह ताला तो हर चीज के। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये वीडियो थोड़ी दोबारा चलाएं, मैं दोबारा गौर से दोबारा सुनना। गौर से सुने भाई, शुरू से सुनाए जी खुरम साहब, अच्छा। ख्वाहिश पूरी करें इनकी। तो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो गांधी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरें मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। वो इस तरह कर सकता है कि
उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको उन्हें दे दे। अल्लाह तो हर चीज के अच्छा प्रकार है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, आप मेरी बात हाँ, सुनो, हाँ। मेरी बात सुनो। जी सुनाए जी सुनाए। उसने बात की है अगर, अगर, हाँ हाँ, अगर का मतलब है चाहो या ना चाहो, हाँ 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 समझ आ गई बात की। हाँ। तो यही मैंने पूछना था अगर कि का मतलब अगर एक मिनट, आपकी एक मिनट, वालदा भाई भाई जी, भाई जी, भाई भाई जी, भाई, अगर जी, की जी बात भाई। है, अगर की अभी हाँ, आप अगर की मेरे से बात। डायरेक्ट होंगे ना, अगर आप मेरे से अभी आप डायरेक्ट अगर। दोबारा बात करेंगे ना, तो अच्छा। मैं तुझे वो सुनाऊंगा। अगर तेरे में इतनी बिल्कुल हिम्मत हो ना सही। तो सुनने के लिए तो बैठे रहना। बिल्कुल, नहीं और नहीं, ये हिम्मत बड़ी है, खुदा बहुत की बड़ा कसम, जिगरा है हमारा। खुदा की हाँ कसम, जी, हाँ जी। अगर तुम्हारे पास जिगरा होगा ना, अगर तूने हाँ, अभी डायरेक्ट वाली बात की तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तुझमें बात तो इतनी वही हमारी हिम्मत होगी ना, हमारी बात अगर बदलती आपने नहीं है, बात हिम्मत वही रहती होगी है ना, कि अगर अगर आपने आपकी हिम्मत वालदा। हो तो ये वीडियो आपने YouTube पे लगानी है। बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा सुने, दूसरी मैं बात, यहाँ दूसरी पे बात, मैं अपना सवाल रिपीट करता हूँ कि अगर भाई हसन मेरी अली की वालदा, अगर अगर हसन अली की वालदा जन्नत में सवाल कर दे कि मुझे 4 शोहर चाहिए, तो अगर उसने ये ख्वाहिश कर दी तो अल्लाह पाक उसकी ख्वाहिश को पूरा करेगा कि नहीं? जी जनाब, दो अगर चार वाली मुक्तियों बात गाला होती है कड्डो, ना, जिधर गाला कड्डो, अगर गाला। वाली बात होती है ना, गालां कड्डो, तुसी हुण तुसी गालां कढ़वा रहे हो हैं। जी क्या बात अगर है, अगर तेरी औकात अगर है जी आप गालियां मुफ्ती, निकाल दें, अगर आप गालियां निकाल दें, तेरी औकात है, अगर आप गालियां इन्नी निकाल को दें। तेरी औकात है, इन्नी को तेरी औकात है, इन्नी को तू इन्ना को मुफ्ती है क्या? गल सुन नहीं लगा यार तू, यार बात बात तो सुने, सुनो ना। अगर ओए मतलब हसन, अगर अपनी आपकी जुबान का जरा थोड़ा तो अपनी जुबान को सेट करके बात करो। तुमसे सारे प्यार से पहले आप करे तो तू ते पे होना यार, कुछ ख्याल कर बात थोड़ा। सुने ना, यार ऐसे कोई बात बात नहीं नहीं, होती। खुरम साहब एक मिनट चुप हो जाए जरा, एक मिनट। साढ़े अच्छा उस्ताद बात ने ये कि मोहतरम तू अगर आप बगैरता अगर ना आपकी काम वालदा, ओ यार यार चले ही गए हैं यार, खुरम साहब ने साथ छड़िया जे, ओ अगर दे विच ही ते यार खुरम सारा साहब मसला उस्ताद जे। मोहतरम की बात के बीच में नहीं बोलते होते, वो बात देखा ना, चला गया बंदा। अगर आपने अगर बिल्कुल नहीं बोलना। हसन अली की वालदा अगर जन्नत में सवाल कर दे कि या अल्लाह ताला मुझे 4 शोहर चाहिए, मसाल है, अगर दिल कर ही पड़ता है कोई मसला नहीं, क्या मसला है यार? तो वो रोला पड़ गया अब कि उसको 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं। अब 4 शोहर चलो जी भी मिल गए, तो आपके वाला साहब का दिल कर रहा है गेम डालने को, तो वो 4 शोहर जो है ना वो पहले से ही तैयार बैठे हैं गेम डालने के लिए। अब सवाल यहां पर ये है, असल मरकजी सवाल तो अब आ गया ना, हसन साहब सामने होते तो फिर करते भी हम सवाल। अब वो 4-5 जो शोहर इकट्ठे हो गए हैं, ये मिल के गेम डालेंगे या बारी लगाएंगे कि पहली बारी तेरी चन टास कर लो इत्थे भाई, जेड़ा जित गया वो पहले स्टैप मारेगा, ते दूजे नंबर वाला तेरी वारी है, ते तीजे नंबर ते तेरी वारी है, ते चौथे नंबर ते तेरी है। अच्छा ये तो था पहला सवाल। अब दूसरा सवाल ये है कि मिर्जा जूनियर जेल में कहता है कि अल्लाह ये भी कर सकता है कि औरत को बना दे मर्द और उसको दे दे 4 हूरें। इत्थे भी रोला पै गया। सवाल यहां पर यह है कि एक तो तेरी माँ का जो शोहर है यानी तेरा बाप, वो भी जन्नत में है उधर, उसका अब गेम डालने को तेरी वालदा से दिल कर रहा है। ऊपर से हुआ यह है कि तेरी वालदा तो बन गई है मर्द, तो अब वो वहां पे क्या वो हम जिन्स परस्ती करेंगे? यानी वो जो बीवी थी वो तो शोहर बनी हुई है, तो बंदा क्या गेम डालेगा तो वो क्या वो मर्द के साथ ही गेम डालेगा? अच्छा अगली बात, एक और बात यहां पे लो जी, अब आपके वालिद साहब गेम डाल रहे हैं वहां पे, बिल्कुल कम 30 ते पहुंचे है, बिल्कुल रेडी, बस ना इंजाल होन ही लगा सी, बस इंजाल होने दे विच ना जस्ट कोई 10 सेकंड बाकी थे, अभी फुल जनाब अरूज पे काम पहुंचा हुआ है।
उधर ही दिल कर पड़ा है आपकी वालदा का कि 4 उसको हूरे मिले, तो अल्लाह ताला ने उसको बना दिया मर्द। यानी अभी जो सलाई है ना सुरमेदानी के अंदर है, सलाई सुरमेदानी के बिल्कुल अंदर है, रेडी है काम, और उधर ही वो बन गए मर्द। अब मुझे बताओ अब क्या सीन क्या होगा? ये तो बड़ा खटाई च पै गया काम यार। हसन साहब आओ ना यार, कालते आओ यार, ये तो बड़ा रौला पै गया यार। ये ते सलाई सुरमेदानी ते इधर इधर उधर तितर बितर हो गया काम भाजी। हैं? ये ते काम ही सारा तितर बितर हो गया है। ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਰਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नाजुक सूरत हाल भाई मरना ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨ ਤੇ ਬੜੀ नहीं यार तू जरा तू इंग्लिश च की कहंदे ने इमेजिन, तू जरा इमेजिन ते कर। यानी बिल्कुल जनाब कम 30 ते पहुंचे ते उधरों ही नाल वो मर्द बन गया है यू टर्न। वो ते कब खराब हो गया ना भाजी, कब ते खराब हो गया है, बनेगा की? अच्छा यार यहाँ पे चलो मजाक तो रहा अपनी एक जगह पे, इन उल्लू के पट्ठों की अक्लें मत्ते बज गई हैं, खुदा की कसमें मत बज गई है। एक इंतहाई गलीज इंसान की ये पैरवी कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं और इनको शर्म दिला रहे हैं हम। मजाल है कि उसके ऊपर लानत करें ना, डिफेंड भी कर लें और उसके कायद और नजरियात को तस्लीम भी नहीं करना। और लखती लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर, गंदी फितरत के ऊपर। पुत्र तुम लोगों की वालदैन के सामने ये बातें हो ना, तो तुम्हें वो ही तुम्हारे माँ और बाप ने लितर उठा के तुम्हें लम्बे डाल रहे उधर ही। आ तू वड्डा इधर मुस्लिम इल्मी किताबी। चलो भाई और कोई मुस्लिम इल्मी किताबी है तो आओ यार। ये तो सवालात तो लाइन लग गई अब। हाँ जी, इतने सवालात के जवाब कौन देगा? और छोटा जी जी उस्मान भाई, नहीं जीम भाई आप करें बात। अच्छा मैं आज ये कर रहा था कि उस्ताद मोहतरम सवाल दो, मेरा भी इसी टॉपिक के ऊपर एक बनता है, क्योंकि बात अब शुरू हुई है कि फर्ज करें कि इसकी जो वालदा है वो मर्द बनी है और उसका भी दिल कर रहा है कि मैं किसी को बचाऊं, और इसके वालिद का भी दिल कर रहा है कि मैं किसी को बचाऊं। तो इसका वालिद इसकी वालदा के पास चला जाता है, तो बाद में कहता है यार मैं तो लेने गया था लेकिन वहाँ पे अपनी लेके आनी पड़ी है मुझे। ये चक्कर भी हो सकता है। वो तितर बितर ही हो गया कब। हाँ जी। अच्छा इसी वीडियो के आखिर में जाके पता है क्या कहता है? कहता है अगर कोई बंदा बंदर सुअर खंजीर भी बनना चाहेगा तो अल्लाह उसको बना देगा। इसी वीडियो के बिल्कुल आखिर में जाके वो ये बात कहता है। अब ये इसकी वालदा वो अभी अब्बू जी जो है बिल्कुल ऊपर चढ़े हुए थे जी, गेम डाल रहे थे, तो वालदा का दिल कर पड़ा है बांदरी बनने को। चलो काम ही कुछ और शुरू हो जाता है। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਸੂਰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੰਨਤੀ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜੰਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ।
अच्छा मैं भी क्या है क्यों इन्नी निन्नो लेंदा पिया गीबत नहीं करनी चाहिए गीबत नहीं वो खोदिया पहाड़ ते निकलिया चूहा आंदा है मेरा उस्ताद है ओ यार कमाल ही हो गई आई ते किधर गया है दौड़ गया थल्ले भी नजर को नहीं हुंदा पे यार फॉर यू पे बैठ के सुन रहा है उस्ताद मोहतरम। थल्लू निकल गया यकीन जान थल्लू निकल गया आओ टेंड टेंड अद्धी की टेंड हुई सी ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ यार कमाल ही हो ਦਾਦੇ मोहतरम ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬਾਂ ਚ ਗੇਮ ਲਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ओए हो तेरी खैर ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਛੋਡੇ ਛੋਡੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੋ ਬਸ ਤਾਂ नहीं कायदा को लिए गलत है ना जो चाहोगे वो ये तो कायदे को लिए गलत है ਬਈ ਚਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿਆ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ बड़े सवालात ने भाजी अगर इस चीज का दरवाजा खोल दिया जाए कि जो ख्वाहिश करोगे पूरी होगी तो हजारों सवालात निकलते हैं यहां से अच्छा उस्ताद मोहतरम यार मैंने दो सवाल उस्ताद मोहतरम मेरे दो सवाल हैं वो तुसी उस्ताद मोहतरम एक तो ये कि छोटे बच्चों को 12-13 साल के बच्चों को कौन सी इस्लामिक स्टोरीज यूट्यूब से दिखाई जाएं जिसमें सही इस्लामी हिस्ट्री का पता चले। यार वो आजकल एक यूट्यूब चैनल है कोहस्तानी के नाम से तो वो लड़का बड़ी जबरदस्त वीडियोस बना रहा है यार उसकी वीडियोस दिखाएं अपने बच्चों को। ठीक है उस्ताद मोहतरम वो आप अगर फारिग होंगे तो लिंक सेंड कर दीजिएगा। और दूसरा उस्ताद मोहतरम हम एज ए बरेलवी कौन से तफसीर को सुने यूट्यूब पे क्योंकि सुनने का टाइम ज़्यादा होता है पढ़ने का टाइम कम होता है तो कौन सा आप ऐसा वो करेंगे सजेस्ट करेंगे कि तफसीर रे कुरान अगर पढ़नी हो ये सुननी हो तो कौन से आलिम की और कौन से यूट्यूब चैनल से सुनी जाए। बेहतरीन मदनी चैनल है अपने बच्चों को मदनी चैनल से जोड़ दें मदनी चैनल के ऊपर कुल्लो हम 24 घंटे हर चीज ठीक है ठीक हो गया हाँ बेहतरीन है कंजुल ईमान पढ़िए तर्जुमा तफसीर है नूरुल इरफान है खज़ाइनुल इरफान है ठीक है बड़ी अच्छी तफसीरें हैं अच्छा माजे तो सादे मोहतरम कथा कलामी के लिए जी जी अच्छा कथा कलामी के लिए माजरत है काशी भाई वो मदनी चैनल पे एक मौलाना कासिम अत्तारी साहब है उनका डेली तफसीर की क्लास जो है वो यूट्यूब पे होती है आप वो सुन लिया करें वो माशाल्लाह उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है और अंदाज़ बयां है वो बहुत ही एक समझ ले के रूह को ताज़ा करने वाला है जज़ाकल्लाह। उस्ताद मोहतरम के उस्ताद भी हैं वो कासिम अत्तारी साहब अल्लामा कासिम साहब मेरे उस्ताद ग्रामी हैं जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम आप आराम फरमाएं इंशाल्लाह हम बैठे हैं फिर। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया तफसीरें तो फिर बड़ी हैं ना बड़ी तफसीरें हैं भाई तो ये है कि
यूं समझ लें कि आज से 200 साल पहले की जितनी तफसीरें हैं तकरीबन ठीक ही हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो 19-20 छोटे मोटे मामलात में थोड़े बहुत इख्तलाफात आपको मिलेंगे, तो मजमूई तौर पे समझ लें कि वो ठीक ही हैं। और जहाँ पर कोई गलत बात होती है ना, तो ये इन उर्दू तफासिर के अंदर उनका रद्द किया गया है। आपको नूरुल इरफान के अंदर या खज़ाइनुल इरफान के अंदर वो तफसीरों के अंदर ना वो किसी ने अगर कोई ऐसी बात की है जहाँ पे कोई इख्तलाफ होता है तो उसको वो जिक्र कर देते हैं कि ये फलां ने ये बात ठीक नहीं की। तो ये बात है। तो अब जब से ये इंतशार आया है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बाद, तो उस वक़्त से ना अब तफसीरें भी अलग अलग हो गई हैं, और कुछ जो है वो रंगीले बादशाह भी बीच में शामिल हो गए, जैसे मदूदी है, डॉक्टर असरार है, जवेद गामदी है, सर सैयद अहमद खान है, गुलाम अहमद परवेज है। तो ये गैर आलिम लोग हैं, जाहिल लोग थे ये लोग, बिल्कुल जाहिल, परले दर्जे के जाहिल। तो इन्होंने भी तफसीरें की हैं, तर्जुमे की हैं। अब बताइए कि हमने उलमा की माननी है कि इन जाहिलों की माने? वो डॉक्टर असरार है, वो सेल्फ स्टडी थी उसकी, बिल्कुल वो आलिम तो नहीं है वो बंदा। मकतबे फिक्र उसका देवबंदी है, और उसके देवबंदी मकतबे फिक्र के आलिम ही उसको नहीं मानते। वो कहते बंदा ये सही नहीं है। बड़ी जगह के ऊपर उसने खच मारी है। उसके अपने मौलवी अपने उसके मकतबे फिक्र के उसकी नफी करते हैं। इसी तरीके से मौदूदी जो है वो आलिम नहीं था, आलिम नहीं था, वो एक स्कूल कॉलेज का पढ़ा हुआ था बस। तो दाढ़ी रख ली तो पग बांध ली, तो उसने भी मिर्जा जूनियर जेल में की तरह एक एकेडमी खोली थी बस, तो वहां से मशहूर हो गया। तो जवेद गामदी का भी यही मामला है। तो उलमा को आप पढ़िए, आप उलमा के करीब रहिए, बस ठीक है। अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा चलें यार, मुझे इजाज़त दीजिए, रब रखा मजलस लगा के बैठें और इनको दावत मुकालमा दीजिए और ये लोग सामने आएँ और बात करें, ठीक है? मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।